Hello students, in this part I will discuss about polygenic inheritance. In the previous class I have discussed about pleiotropy. In pleiotropy we observed that one gene regulates several features. So it is pleiotropic effect. And in this part I will discuss about polygenic inheritance, which means that many genes regulates a feature. In an organism, many genes regulates a feature, then it is called a polygenic inheritance. So what is polygenic inheritance? If many genes regulates a feature, then it is called polygenic inheritance. Clear? What is polygenic? Many genes regulates a feature. Many genes regulates a feature. कई सारे जीन एक फीचर को रेगुलेट करते हैं, then it is polygenic inheritance. This phenomenon was first observed by Carl Reuter. Carl Reuter ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था. याद करेंगे कार्ल र्यूटर को. कार्ल र्यूटर इज फेमस फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन टोबैको प्लांट. तो कार्ल र्यूटर ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को. बट एक्चुअली दिस फेनोमेनन वाज डिस्कवर्ड इन प्लांट बाय Nilsson and Ehle. So this was discovered by Nilsson and Ehle in the wheat kernel. wheat grain के कलर के लिए देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है. निल्सन एंड एहले इन व्हीट कर्नल. कहाँ पर डिस्कवर किया? इन wheat kernel. He found that there are two genes which regulates kernel color of wheat. Later it was discovered that actually there are three genes which regulates kernel color, but Nilsson and Ehle observed that there are only two genes which regulates kernel color. If these two genes are R1 and R2, then their alleles will be R1, R1, R2, R2 dominant, and if recessive की बात करूँ तो small r1, small r2, R2 recessive. निल्सन एंड एहले ने ये ऑब्जर्व किया कि जब ये चार के चार एलिल्स if dominant condition में होंगे, if all the four alleles are present in dominant condition, then the kernel color will be red, and if number of dominant allele decreases, then the color of kernel will be changed. If only three alleles are present in dominant condition, then the kernel color will be dark pink. If two alleles are present in dominant condition, then kernel color will be pink. If only one allele is present in dominant condition, then kernel color will be light pink, and if all are recessive, then kernel color will be white. So क्या discover किया इसने? He discovered that kernel color of wheat is regulated by number of dominant alleles. 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 If four alleles are dominant, then kernel color will be red. If three alleles are dominant, then dark pink. If two alleles are in dominant condition, then pink. If only one allele is in dominant condition, then color will be light pink. And if no alleles
If no alleles are in dominant condition, then the color will be white. So कर्नल कलर को रेगुलेट किसने किया? नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल्स ने. अगर 4 थे तो रेड, 3 थे तो डार्क पिंक, 2 हो गए तो पिंक, 1 हो गए तो लाइट पिंक. इसलिए इस तरह के इनहेरिटेंस पैटर्न को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि नंबर, क्वांटिटेटिव मीन्स नंबर काउंट करते हैं और उसके हिसाब से हम उसके फीचर को रेगुलेट कर देते हैं. सो इट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड quantitative, is also called quantitative inheritance. It is also called quantitative inheritance. So it is also called quantitative inheritance. Clear है? अगर हम एक प्योर रेड को प्योर व्हाइट के साथ क्रॉस कर दें तो क्या होगा? प्योर रेड विल बी R1 R1, R2 R2. It crossed with pure white R1 R1 R2 R2. So what will be? R1 R2 R1 R2. In F1 R1 R1 R2 R2 will be offspring F1 and the color will be pink. क्यों पिंक होगा? क्योंकि 2 ही डोमिनेंट एलील. आपने लिखा है कि जब 2 होंगे तो पिंक होगा, 3 होंगे तो डार्क पिंक होगा, 4 होगा तो रेड होगा. तो यहाँ पर 2 दिख रहा है डोमिनेंट, इसलिए ये क्या हो गया? इसलिए ये हमारा पिंक हो गया. अगर F1 को हम सेल्फ पॉलिनेट कर दें, इफ F1 इज सेल्फ पॉलिनेटेड, तो हमारे पास कैसा रेशियो मिलेगा? लेट्स सी. इफ F1 इज सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 हमारा क्या है? तो वहां से गैमेट्स निकाल लेंगे F1 के. F1 हमारा चित्र को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 and 4. Gametes. One, 2, 3 and 4. So what is gametes? याद करो क्या था हमारे पास? R1 R1 R2 R2. तो गैमेट्स कैसे निकालेंगे? फॉक मेथड से निकाल लेंगे. ऐसे R1 R1 R2 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 R2. सो गैमेट क्या होगा? गैमेट होगा हमारा R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2. R1 सेल्फ पॉलिनेट किया, सेम गैमेट बनेगा. R1 R2 R1 R2 R1 R2. कलर साथ में डिस्कस कर लेंगे. R1 R1 R2 R2. 4 है डोमिनेंट, रेड हो जाएगा. R1 R1 R2 R2. 3 डोमिनेंट है, डार्क पिंक हो जाएगा. R1 R1 R2 R2. 3 डोमिनेंट है, डार्क पिंक होगा. R1 R1 R2 R2. 2 डोमिनेंट है, पिंक हो जाएगा. R1 R1 R2 R2. 3 डोमिनेंट है, डार्क पिंक होगा. R1 R1 R2 R2. 2 डोमिनेंट है, क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. R1 R1 R2 R2. 2 डोमिनेंट है, अगेन पिंक हो जाएगा. R1 R1 R2 R2. 1 डोमिनेंट है, लाइट पिंक होगा. R1 R1 R2 R2. 3 डोमिनेंट है, डार्क पिंक होगा. R1 R1 R2 R1 R1 R2 R2. 2 डोमिनेंट है, पिंक होगा.
R1 R1 R2 R2, दो डोमिनेंट है, पिंक होगा। R1 R1 R2 R2, एक डोमिनेंट है, लाइट पिंक होगा। R1 R1 R2 R2, दो डोमिनेंट है, पिंक होगा। R1 R1 R2 R2, एक डोमिनेंट है, पिंक होगा। कैसा पिंक होगा? लाइट पिंक होगा ना, लाइट पिंक, क्योंकि एक ही डोमिनेंट है, ये लाइट पिंक होगा। यहाँ पर R1 R1 R2 R2, एक डोमिनेंट है, लाइट पिंक होगा। यहाँ पर एक भी डोमिनेंट नहीं है, R1 R1 R2 R2, ये कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। यही हमारे पास, अगर हम सबके नंबर को काउंट करें तो देखो कुछ इस तरह का रेशियो हमें दिखेगा। रेड, डार्क पिंक, पिंक, व्हाइट, यही चार कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं। रेड कितना मिल रहा है? 1, यहाँ पर रेड सिर्फ एक है। डार्क पिंक 1 2 3 4, डार्क पिंक कितना दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है। पिंक कितने दिख रहे हैं? पिंक 1 2 3 4 5 6, पिंक कितने दिख रहे हैं? तो 6 दिख रहे हैं। रेड, डार्क पिंक, पिंक कितने दिख रहे हैं? 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। एक और दिखेगा ना, लाइट पिंक, लाइट पिंक, फिर वाइट, तो एक हमें लाइट पिंक मिलेगा और एक हमें वाइट भी मिलेगा। तो लाइट पिंक कितना दिख रहा है? देखो, लाइट पिंक 1 2 3 एंड 4, लाइट पिंक हमारे पास कितना दिख रहा है? 4।